So, very good morning student. Today is 13/5/2020 and we will discuss about the advantages and disadvantages of hydroelectric power plant. And in my previous class, we have already discussed about the introduction and the layout of hydroelectric power plant, where we have seen that, that this is the difference between the head race and tail race level, which is called Hg. The difference Hg equals to difference between head race HR and tail race TR. Difference between head race and tail race, which is Hg, when the dam gate will open, that time due to the due to the suction on that in this portion, the fluid is going to from the high pressure zone is going to the low pressure zone, and it will enter into the penstock, and through the penstock it will it will move from one place to the another place, and again it will discharge from the nozzle portion. जब मेरा यहाँ पे डैम प्लेट ओपन होगा तो कम सक्शन या वैक्यूम के वजह से यहाँ पे जो हाई प्रेशर जोन पे जो मेरा फ्लूइड था, वो फ्लूइड मेरा पेनस्टॉक के थ्रू से इंटर करेगा और उसके बाद वो एक जगह से दूसरा जगह पे मूव करेगा एंड नोजल के थ्रू से वो डिस्चार्ज होगा. जब नोजल के थ्रू से डिस्चार्ज होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने के वजह से यहाँ पे जो टरबाइन में जो टरबाइन का जो ब्लेड लगा हुआ रहता है, वो नोजल के एरिया कम होने की वजह से बहुत ज्यादा वेलोसिटी से वो फ्लूइड डिस्चार्ज होगा और वो टरबाइन का ब्लेड में स्ट्राइक करेगा, गिविंग सम फोर्स, exerted some force on the turbine plate, and at every fraction of minute, every fraction of second, the jet is strike on the various number of plates of the turbine. टरबाइन का सब प्लेट में धक्का मारता है और वो टरबाइन ऑटोमेटिकली रोटेट करना शुरू करता है. जब टरबाइन का ब्लेड्स कंटीन्यूअस मोशन में रोटेट करना शुरू करेगा, तब ये जो शाफ्ट लगा हुआ है यहाँ पे, ये शाफ्ट रोटेट करना शुरू करता है और वो शाफ्ट के साथ एक ऑल्टरनेटर का शाफ्ट कपल होते रहता है. तो वो शाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो ऑल्टरनेटर का शाफ्ट भी रोटेट करता है, जिसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है. So this type of the description we have already discussed in my previous class. So this is now we will discuss certain simple thing, which is the types of head. Types of head. Types of head में क्या है? This is Hg. Hg means gross head. Gross head. How we will define the gross head? Gross head means the difference between the head race level and tail race level. Now another one is HF. HF means, sorry, it's small h. HF means head loss due to friction, because हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स का फोर्थ चैप्टर में फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स, ये जब हम लोग स्टडी किए थे उसमें हम लोग देखे थे कि पाइप के अंदर से कोई भी फ्लूइड जब फ्लो करता है, पास करता है, उस टाइम ड्यू टू द इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया ऑफ द पाइप देयर शुड बी सम मेजर लॉस or minor loss due to the sudden expansion, sudden contraction, bending, fitting, इनलेट, एग्जिट, ये सब चीज के वजह से उसके पाइप के अंदर माइनर लॉसेस होता है और मेजर लॉस होता है. पाइप का इंटरनल सर्कमफरेंशियल एरिया के साथ जो फ्रिक्शन होता है उसके वजह से मेजर लॉस होता है, राइट. तो उसके लिए जो यहाँ पे जब पेनस्टॉक के अंदर फ्लूइड मेरा एंट्री कर रहा है, तो उस टाइम यहाँ पे मेरा एक लॉस अमाउंट ऑफ लॉसेस हो रहा है, दैट इज माय हेड लॉस. दैट इज माय हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. So types of head क्या मिला? Gross head मिला, head loss मिला. Another head is HF, which is called net head, which is the difference between the tail race to the HF, right? तो मेरा whole distance, whole height मेरा कितना है? 8g. 8g से अगर मैं HF को माइनस करूंगा तो मुझे according to the drawing मुझे net head मिलेगा. 8g minus HF equals to net head. So these three types of head is applicable for the hydroelectric power plant. First one is gross head, second one is head loss due to friction, and third one is net head, which is Hg minus Hf. According to the diagram, this is Hg and this is Hf, head loss. So Hg से अगर Hf को माइनस करूंगा तो मुझे net head मिल जाएगा. Okay, so now I will discuss the advantages of hydroelectric power plant. Some advantages of hydroelectric power plant.
एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, हाईली रिलायबल। पॉइंट को थोड़ा समझने का कोशिश करना। हाईली रिलायबल, highly reliable, clean and efficient energy source. Clean, efficient energy source. Highly reliable. Why it is highly reliable? Because we are using the main ingredients for the generation of the electric. इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वो हम लोग यूज कर रहे हैं वाटर। कहाँ का वाटर? डैम का वाटर। ये वाटर कहाँ से आया? ये डैम का वाटर आया है। जो हर एक इंडस्ट्री के आसपास में देखोगे कोई ना कोई रिवर रहता है, नदी रहता है। एग्जाम्पल ले लो तुम लोग का झारखंड में हिंदाल्को के पास है सुवर्ण रेखा, राइट। उसके बाद तुम एग्जांपल ले लो डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, उसके साइड में भी रिवर है, राइट। आगरा का जो कंपनी है तो ठीक है, उसके साइड में भी कावेरी रिवर है। तो कोई ना कोई इंडस्ट्री हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमेशा वो जो जगह को चॉइस करता है, जो प्लेस को चॉइस करता है, पोजीशन ऑफ द प्लांट, वो जो होता है वो बेसिकली रिवर का साइड में होता है। क्योंकि हम लोग का जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए सबसे जो इजी चीपेस्ट कंपोनेंट है, जो इंग्रेडिएंट है, वो है मेरा वाटर। और वाटर को हम लोग यूज करेंगे, एक डैम को मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, और जहां पे मैं वाटर को स्टोर कर सकूं, और उसके बाद वो पेनस्टॉक के थ्रू से वो वाटर को हम लोग लाते हैं और टरबाइन का ब्लेड पे हम लोग स्ट्राइक करवाते हैं और टरबाइन को रोटेट करवाते हैं। टरबाइन यहाँ पे जितना छोटा लग रहा है, वो टरबाइन एक्चुअल अगर इंडस्ट्री में कोई अगर विजिट किए हो तो वहां पे देखोगे टरबाइन का ब्लेड बहुत बड़ा साइज का होता है। तो वो टरबाइन हेवी अमाउंट ऑफ ब्लेड को रोटेट करने के लिए सडन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फोर्स इज नॉट कैपेबल, तो वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट लगता है। बट ये हाईली रिलायबल इसलिए है क्योंकि हम लोग चीपेस्ट कंडीशन में वाटर को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लीन है बिकॉज हम लोग वाटर यूज करते हैं। अगर उसकी बदले में अगर ऑयल यूज करते तो ऑयल यूज करने से जो ऑयल का थिकनेस या ऑयल का डेंसिटी ज्यादा होता है कंपैरिजन टू द वाटर। तो इसके लिए क्या होता है कि वो जो पूरा जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्लीन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा कोई चीज को क्लीन करने के लिए वाटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज वेरी क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी सोर्स, बिकॉज वाटर का जो सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज रिवर। अगर वाटर मेरा घटेगा तो मेरी एफिशिएंसी घटेगा, लेकिन वाटर अगर नहीं घटेगा तो एफिशिएंसी नहीं घटेगा। और ज्यादातर रिवर में लिक्विड का वैल्यू घटता नहीं है और उसको पहले ही हम लोग डैम पे स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये दिस इज वेरी एफिशिएंट एनर्जी सोर्स है। सेकंड वन इज रिन्यूएबल नॉन रेडियोएक्टिव and non-pollutive. So renewable, non-radioactive and non-pollutive. मतलब renewable मतलब obviously it's a renewable source. Water is a renewable source. इसको हम लोग सबसे बड़ा बात है जो वाटर हम लोग यहाँ पे टेल रेस में स्टोर होता है, यही वाटर को फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा बात है ये रिन्यूएबल सोर्स है। सनलाइट इज अ रिन्यूएबल सोर्स, वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्स, कोल इज अ रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रेडियोएक्टिव। यूरेनियम हम लोग यूज नहीं करते, तो यहाँ पे कोई रेडियोएक्टिव रिएक्शन का कोई जगह नहीं है। तो ये नॉन रेडियोएक्टिव इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है। और नॉन पॉल्यूटिव, यहाँ पे हम लोगों को पॉल्यूशन नहीं होता। इस तरह एज इट इज ये क्लीन है, तो यहाँ पे हम लोगों को कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और हम लोग इजीली है यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज लो कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन। लो कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन मतलब इनिशियल कॉस्ट में बी हाई, क्योंकि हम लोग को एक टरबाइन फिक्स करना पड़ता है, बॉयलर को फिक्स करना पड़ता है। टरबाइन फिक्स करते हैं, बॉयलर को फिक्स करते हैं, ड्राफ्ट को फिक्स करते हैं, उसके बाद कंडेंसर रहता है, कंप्रेसर रहता है, डीमिनरलाइज्ड प्लांट रहता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ये सब चीज को इनिशियली अगर देखा जाएगा तो इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, बट द मेंटेनेंस कॉस्ट जो मतलब
एक साल लगातार जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है इस पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, ठीक है, वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट मेरा मिनिमम है, लो है, लो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्ज, लो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्ज। लो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्ज मतलब ऑब्वियसली कि लो ऑपरेशन, कम ऑपरेशन है। अगर यहाँ पे इस हाइड्रोलिक पावर प्लांट को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे डैम से पेनस्टॉक यूज कर रहे हैं, पेनस्टॉक के थ्रू से फ्लूइड को लेके आ रहे हैं, नोजल यूज कर रहे हैं, नोजल से फ्लूइड को टरबाइन का ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहे हैं, करवा रहे हैं, टरबाइन का ब्लेड रोटेट कर रहा है तो शाफ्ट रोटेट कर रहा है। दिस इज अ वेरी लो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्ज। ऑपरेशन चार्ज इज वेरी लेस and maintenance charge is also very less for the hydroelectric power plant. Next fifth point, staff requirement is less. I think तुम लोगों को ये समझ में आ ही जा रहा होगा, staff requirement is less. Sixth point, transportation is less. Transportation is less. ट्रांसपोर्टेशन इज लेस बिकॉज डैम से जो पावर प्लांट का जो टरबाइन हाउस होता है उसका डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ वाटर को वेरी लो डिस्टेंस के अंदर हम लोग उसका जो पावर को हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसपोर्टेशन इज लेस, ये वाला पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट, प्लांट हैज लॉन्गर लाइफ। प्लांट हैज लॉन्गर लाइफ। प्लांट हैज लॉन्गर लाइफ मींस ऑब्वियसली दो अगर कोई पावर प्लांट की तरफ ध्यान दोगे तो जो अगर उस पावर प्लांट का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसके वजह से मेरा मेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है तो वो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स वो है वाटर। वाटर इज वेरी चीप, राइट? तो वाटर अगर कोई टरबाइन का ब्लेड के ऊपर जब स्ट्राइक कर रहा है मे बी सर्टेन टाइम बाद जो टरबाइन का जो ब्लेड है वो ब्लेड का मे बी आई मीन कोरोजन हो सकता है, राइट, या उसके अंदर कुछ मालफंक्शंस हो सकता है। बट द होल प्लांट, अगर होल प्लांट के हिसाब से अगर हम लोग विचार करेंगे क्योंकि वहां पे डीमिनरलाइज प्लांट रहता है, बॉयलर हाउस रहता है, टरबाइन हाउस रहता है, इलेक्ट्रिक जनरेशन हाउस रहता है प्लांट के अंदर, तो वो जो प्लांट है उस प्लांट का बहुत लंबा एक लाइफ होता है क्योंकि वहां पे हम लोग जो भी कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं वो सारा कंपोनेंट वाटर के, वो सारा कंपोनेंट्स के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो मेरा वाटर होता है, इसीलिए वहां उसका ये प्लांट का जो लाइफ होता है वो बहुत लॉन्गर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लांट एफिशिएंसी रिमेन्स कांस्टेंट। द प्लांट एफिशिएंसी, the plant efficiency remains constant, right? What is the meaning of efficiency? Meaning of efficiency is output by input. तो यहाँ पे input क्या है? यहाँ पे input है how much volume of water is giving some force, exerted some force into the turbine blade. This is the input. And what is the output? The output is the generation of electricity by the rotation of the shaft of the alternator. तो अगर मैं इनपुट को देखूंगा, इनपुट इज डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा उतना ही वॉल्यूम, उतना ही शाफ्ट मेरा स्पीड में रोटेट करेगा, जितना मेरा स्पीड में रोटेट करेगा अल्टरनेटर का शाफ्ट भी उतना स्पीड में रोटेट करेगा और मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। सो द प्लांट एफिशिएंसी रिमेंस कांस्टेंट बिकॉज़ हम लोग एक सर्टेन पेनस्टॉक के अंदर से अगर पेनस्टॉक का फुल डायमीटर को अगर हम लोग कवर करके फ्लूइड को लेके आते हैं फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, तो मेरा वो कांस्टेंट, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हम लोग वहां पेनस्टॉक के थ्रू से अगर लेते हैं तो वो मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ। तो इसीलिए जब कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जाके मेरा टरबाइन ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा है तो शाफ्ट का रोटेशन भी मेरा एक जगह पे मैक्सिमम होकर वो कांस्टेंट बनता है और वो मेरा मैक्सिमम अमाउंट और या कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सो दीस आर द एडवांटेजेस ऑफ hydroelectric power plant. So now I will discuss what are the disadvantages of hydroelectric power plant. What are the disadvantages of hydroelectric power plant? Okay, so we will discuss about the disadvantages of the hydroelectric power plant. First point, disadvantage, right? Disadvantage क्या है? Erection of dam
erection of dam required longer period of time. Longer period of time. Erection of dam required longer period of time. So इरेक्शन ऑफ द डैम मतलब क्या है कि डैम तो बेसिकली क्लोज रहता है ना इस तरीके से, राइट? डैम में आपकी इस तरीके से क्लोज रहता है, ये मेरा बेस रहता है, यहाँ पे गेट रहता है, ठीक है? ये गेट मेरा ब्लॉक रहता है डैम के अंदर। तो जब मैं गियर के द्वारा ये गेट को मैं ओपन करता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में मैं जब गेट को ओपन करता हूँ, तब यहाँ पे गैप क्रिएट होता है, राइट? लाइक दिस, यहाँ पे गैप क्रिएट होता है। तो ये गैप क्रिएट करने से वो गैप के अंदर से मेरा फ्लूइड, इस साइड में जितना मेरा फ्लूइड मेरा स्टोर हुआ रहता था, वो फ्लूइड मेरा पेनस्टॉक के थ्रू से पास करता है। तो इरेक्शन ऑफ डैम रिक्वायर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे पेनस्टॉक से मैंने क्या बोला था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड ही मेरा सर्टेन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट वे में मेरा यहाँ पे टरबाइन का ब्लेड में स्ट्राइक करेगा। तो उस कंटिन्यूअस, अगर मैं उस स्ट्राइक को मुझे अगर कंटिन्यूअस रखना है, तो मुझे यहाँ पे फ्लूइड का मोशन भी मुझे कंटिन्यूअस रखना है। तो यहाँ पे ये डैम का गेट को मुझे कंटिन्यूअस मोशन में ओपन करके रखना है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इरेक्शन ऑफ डैम मतलब गेट जो ओपन हो रहा है रिक्वायर्ड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा देर तक उसको ओपन करके रखना पड़ता है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सेकंड पॉइंट, इट हैज राइट हायर इनिशियल कॉस्ट। मैंने पहले ही बोला था एडवांटेजेस के टाइम, एडवांटेज डिस्कस करने के टाइम पे, कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो इनिशियल कॉस्ट है, जो इनिशियल फाउंडेशन, मान लो पूरा प्लांट को तैयार करने में, प्लांट का टरबाइन हाउस को प्रिपेयर करने में, बॉयलर हाउस को प्रिपेयर करने में, डीमिनरलाइज प्लांट को प्रिपेयर करने में, वो पेंट स्टॉक के साथ डैम का कनेक्शन को प्रिपेयर करने में जो इनिशियल कॉस्ट लगता है, जो इनिशियल जो खर्चा मेरा जो होता है, वो मेरा सबसे ज्यादा होता है। इट हैज अ लार्ज इनिशियल कॉस्ट, राइट? बट इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो मेरा लोअर होता है। दैट इज द एडवांटेज पॉइंट, दैट मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लोअर, बट इट्स अ डिसएडवांटेज पॉइंट कि इट हैज हायर इनिशियल कॉस्ट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम, the building of large dam, the building of large dam can cause serious geological damage, serious geological damage, geological damage। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो मेरा रिवर फ्लो कर रहा है, राइट? मेरा रिवर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे मेरा एक प्लांट है, यहाँ पे मेरा एक प्लांट है। तो ऑब्वियसली ये जो मेरा रिवर जो मेरा कंटिन्यूअस फ्लो में, नेचुरल वे में फ्लो कर रहा था, तो वहां पे मुझे एक डैम को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब भी मैं एक डैम को प्रिपेयर कर रहा हूं, तो वो जो रिवर का फ्लूइड, रिवर में जो फ्लूइड था, उस फ्लूइड का जो नेचुरल फ्लो को मुझे रोक लगाना पड़ेगा। अगर नेचुरल फ्लो को मैं रोक लगाऊंगा और मुझे अगर डैम को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो डैम का जो बेस होगा वो बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा, मिट्टी का बहुत नीचे उसका फाउंडेशन बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना हैवी स्ट्रॉन्ग डैम है, राइट? उस डैम का एक साइड में पूरा फ्लूइड स्टोर रहेगा और दूसरा साइड में जब गेट ओपन होगा तभी, दूसरा साइड मेरा खाली रहेगा, जब गेट ओपन होगा तभी मेरा फ्लूइड इस गैप से मेरा पास करेगा। तो इतना फ्लूइड स्टोर करने के लिए वो जो डैम का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो भी हेवी कंक्रीट स्ट्रेंथ होना चाहिए, नहीं तो मेरा वो डैम टूट सकता है। तो इसीलिए जब मुझे मिट्टी कोड़ के वो बहुत ही डेप्थ में, मिट्टी का बहुत ही डेप्थ में, आर्ट का बहुत ही डेप्थ में मुझे फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, तो उस टाइम मेरा वो जियोलॉजिकल डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। और इस डैम क्रिएट करने की वजह से जो फ्लूइड का जो नेचुरल फ्लो है, वो मेरा नेचुरल फ्लो ब्लॉक हो जाता है। इसलिए बोला जा रहा है कि द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम कैन कॉज सीरियस जियोलॉजिकल डैमेज, राइट? पॉइंट नंबर 4, the flooding of large areas, the flooding of large areas, the flooding of large areas of land means
The flooding of large areas of land means that the natural environment is destroyed. That the natural environment is destroyed. Natural environment, natural environment is destroyed. Okay, इसका मतलब क्या बोल रहा है? द फ्लडिंग ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ लैंड मींस दैट द नेचुरल एनवायरनमेंट इज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं ये डैम को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ रिवर का बीचों बीच, तो मेरा रिवर का जो वाटर है डैम का लेफ्ट साइड में वो पूरा स्टोर होगा और राइट साइड में वो मेरा स्टोर नहीं होगा, तो जिसके वजह से जब भी यहाँ पे फुल्ली स्टोर हुआ है तो जब यहाँ ये जो मेरा डैम का गेट ओपन होगा, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट का अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तभी यहाँ से फ्लूइड पास करेगा, प्लांट का अगर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा तो फ्लूइड यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। तो इन सर्टेन केस क्या होता है, कभी कभी ये यहाँ पे जो स्टोर्ड वाटर है उसका जो टॉप लेवल वो ज्यादा हो जाता है। तो मान लो एक मान लो कंटेनर में अगर फ्लूइड कंटेनर का टॉप लेवल तक कंप्लीट कर देता है, ये कंटेनर में अगर फ्लूइड टॉप लेवल तक कंप्लीट कर रहा है और उसके ऊपर भी लेवल फ्लूइड का लेवल अगर बढ़ेगा तो वो फ्लूइड क्या होगा, ऑब्वियसली इस साइड से गिर जाएगा, इधर से गिर जाएगा। तो यहाँ पे भी वही होता है कि स्टोर जब हो गया है और मान लो कि कोई बारिश होने की वजह से या कुछ भी चीज को बारिश मतलब नेचुरल कोई कंडीशंस के वजह से अगर डैम का लेफ्ट साइड में जहां पे मेरा फ्लूइड मेरा स्टोर हुआ है यहाँ पे अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो वो ओवरफ्लो के साइड में जो भी एरियाज है वो एरियाज में फ्लड पैदा कर सकता है, फ्लड जनरेट कर सकता है। और दूसरा साइड में राइट साइड में जहां पे बेसिकली फ्लूइड को जरूरत था, जहां पे बेसिकली रिवर का पानी का जरूरत था, वहां पे वो सूख जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली लैंड एरिया सूख जाता है और यहाँ पे लैंड एरिया फ्लडेड हो जाता है। तो ये जो चीज होता है ये डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो ये मेरा क्या करता है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है कि एक साइड में मेरा सूख गया है और दूसरा साइड मेरा फ्लड हो गया है, तो ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये नेचुरल एनवायरनमेंट मेरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। तो ये सब चीज की वजह से और एक प्रॉब्लम हो सकता है दैट पीपल लॉसेस देयर फॉर्म्स, पीपल लॉसेस देयर फॉर्म्स, लॉसेस देयर फॉर्म्स and business, right? People losses their firms and business। मैंने क्या बोला था फोर्थ पॉइंट के लिए कि डैम का लेफ्ट साइड में मान लो वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो गया तो वो क्या होगा, वो फ्लडेड हो जाएगा, वो फ्लडेड हो जाएगा क्योंकि ओवरफ्लो होगा, तो ओवरफ्लो होगा तो दो रिवर का दोनों साइड में फ्लडेड हो जाएगा। और डैम का राइट साइड में जो रिवर का दोनों साइड में जो मान लो यहाँ पे दोनों गांव है तो यहाँ पे जितना सारा जो जमीन है जहाँ पे मेरा खेतीबाड़ी होता था, जो मेरा रिवर का नॉर्मल फ्लो से मेरा ये खेतीबाड़ी होता था वो मेरा सूख जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ का जो फार्मर्स लोग है वो फार्मर्स लोग क्या करेगा, वो खेतीबाड़ी नहीं कर पाएगा, उन लोगों का फॉर्म जो खेत है वो खेत में वो फार्मिंग नहीं होगा, फार्मिंग नहीं होगा। तो ये जो आदमी बिजनेस करता था जिस बंदे के साथ, उस बंदे का आई मीन जो फसल उगता था वो फसल को लेकर जो बेचता था वो बेचा, आई मीन बाय एंड सेल एंड बाय वो चीज नहीं होगा, जिसकी वजह से बहुत सारा पीपल लॉसेस देयर फर्म्स, फ्लड होने से फर्म्स लॉस हो सकता है एंड बिजनेस जो यहाँ पे बाय एंड सेल का जो बिजनेस चलता था वो बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो मेरा जो डिसएडवांटेज पॉइंट, इस डिसएडवांटेज पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक इंजीनियर है, हम लोगों का दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि हम लोग कुछ भी चीज करेंगे, कोई भी हम लोग मशीन को और इन्वेंट करेंगे या कोई भी प्लांट में हम लोग काम करेंगे तो हम लोग को या प्लांट को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग को हमेशा देखना होगा कि सोशल जो सर्विस है, सोशल जो कंसर्न है, वो सोशल कंसर्न को हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग का कोई काम की वजह से मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था इस इंडस्ट्री में, तो उसके वजह से यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन होने की वजह से यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया और यहाँ पे जो जमीन था वहां पे बिना पानी में वो सूख गया, तो यहाँ पे जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो मेरा डिस्ट्रॉय हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन बना, इंडस्ट्री बना। तो कोई भी इंडस्ट्री बनने के पहले वो इंडस्ट्री का पोजीशन सिलेक्ट करने के पहले ये सब सारा चीज में सोशल एथिकल ये सारा चीज को ध्यान पे रखते हुए एक इंडस्ट्री बनता है ताकि कोई भी सोशल इशू ना प्रॉब्लम क्रिएट ना हो या कोई भी जो सर्कमफरेंशियल एरिया में जितना पीपल्स रहता है उतना उसका जो आई मीन अर्निंग का जो वे है वो अर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। So these are the disadvantage of the hydroelectric power plant and in previous we have completed the advantages of the hydroelectric power plant, right. So in my next class we will discuss about the surge tank
and its necessity, and what are the classification of the hydraulic turbine we will discuss, right? So thank you for attending my class, and have a nice day, and stay home and save life. Thank you.